Good morning to everyone. This is the sum we will be doing now. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1/10/2012. See, 1st October 2012, C joins as a third partner. So there were already two partners. उनका profit sharing ratio था 3:2, and on 1/10/2012, that is 1st October 2012, C partner C, Mr. C joins as a third partner. The new profit sharing ratio also is given in the question. 2:2:1. Old ratio was 3:2. New ratio is 2:2:1. The following is their trial balance as on 31/3/2013. What is given? एस ड्राइंग एंड कैपिटल दोनों दिया है, बीस ड्राइंग एंड कैपिटल दोनों दिया है, सीस ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों दिया है. डेबिट बैलेंस इज ड्राइंग, क्रेडिट बैलेंस इज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस ड्राइंग हम लाइबिलिटी से लेस करते हैं, इसलिए क्रेडिट का ऑपोजिट साइड डेबिट. इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो ड्राइंग हम डेबिट में लिखते हैं टू ड्राइंग, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस वर्डम. तो ए का 15,000 इज ड्राइंग, 3 लाख इज कैपिटल. बी का 10,000 इज ड्राइंग, 2 लाख इज कैपिटल. सी का 5,000, न्यू पार्टनर का 5,000 इज ड्राइंग, एंड 1,50,000 इज द कैपिटल. Opening stock 30,000, purchases and sales, purchase is 9 lakh and sales is 14 lakhs. Then wages दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फर्नीचर दिया है असेट में आएगा, जनरल एक्सपेंस विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, selling expense will come in the profit and loss account. Debtor is 6,26,000 and creditor is 2,50,000. Cash and bank balance is 3,50,000 and the amount brought by C for his share of goodwill is 50,000. So C जो है उसने कैपिटल के लिए 1,50,000 लाया है, and for the goodwill, for the amount of goodwill, he has bought 50,000. Amount brought by C for the new partner has brought 50,000 in cash for the share of goodwill, 50,000. Stock on 31/3/2013. This is 31st March 2013 is the year end, and year end के स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. ईयर एंड के स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. वी कॉल इट द क्लोजिंग स्टॉक. Purchases is given from 1/4/2012 to 30 September 2012. मतलब बिफोर एडमिशन का परचेज दिया है 4 लाख एंड टोटल परचेसेस 9 लाख. बिफोर एडमिशन का परचेसेस 4 लाख एंड टोटल परचेसेस 9 लाख. तो आफ्टर एडमिशन कितना परचेस हुआ रहेगा? 9 lakh minus 4 lakh, that is 5 lakh is the purchases after admission. Because up to admission, admission होने से पहले तक का before admission का purchase दिया है, that is 4 lakh, and total purchase for the year is 9 lakh, means after admission purchases 5 lakh, 9 lakh minus 4 lakh. Then we have sales from 1/4/2012 to
to 39 2012. Sales is 6 lakh before admission and total sales is 14 lakh. So after admission sales will be 8 lakhs. 14 lakh minus 6 lakh, that is 8 lakh. वेजेस भी हमें दिया है बिफोर एडमिशन 60,000 एंड टोटल इज 1,40,000. सो फॉर 1,40,000 माइनस 60 किया तो 80,000 इज द वेजेस आफ्टर एडमिशन ऑफ सी. सो स्टॉक इज गिवन ऑन 39/2012. तो 39/2012 का स्टॉक दिया है. दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ एडमिशन. ये क्या रहेगा, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ एडमिशन एंड ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर. एडमिशन जिस दिन हुआ उस दिन का ओपनिंग स्टॉक भी इसको कंसीडर कर सकते हैं. क्या दिया है यहाँ पे, स्टॉक ऑन 39 को जब ईयर बंद हो जाएगा. ईयर क्यों बंद हो जाएगा, इसके अगले दिन एडमिशन है तो उस दिन का स्टॉक दिया है. एंड वी हैव टोल्ड फर्नीचर वर्थ 1 lakh was purchased on 1/1/2013. 1 जनवरी 2013 के दिन हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है एंड टोटल फर्नीचर ऑन 31 मार्च इज 2 लाख, जिसमें से 1 लाख खरीदा है. ये 2 लाख में से 1 लाख खरीदा है ऑन 1/1/2013. ऑन 1/1/2013, that is 1 Jan 2013, and this is the furniture balance on 31 March 2013. फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन है. देयर इज अ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर at how much? At 20%. Interest on capital is to be provided at 12% per annum. Interest on capital will be 12% per annum. Now what we will do, no interest to be charged on the partner's drawing. On the drawing, there is no interest charged. So now what we will do, you are required to prepare trading account containing the columns from 1/4/2012 to 39/2012 and 1/10/2012 to 31 March 2012. मतलब अप्रैल से सितंबर 6 महीना और अक्टूबर से मार्च 6 महीना. काउंट करो, यू विल कम टू अंडरस्टैंड. अप्रैल, मई, June, July, August, September, 6 months. And October to March also is 6 months. October, November, December, Jan, Feb, March is also 6 months. So हमें ट्रेड, हम नॉर्मली सिर्फ एडमिशन अगर मिडल ऑफ द ईयर में हुआ तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉलम बनाते हैं बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन. बट इन दिस सम दे हैव आस्क्ड अस कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी बिफोर एडमिशन आफ्टर एडमिशन का कैलकुलेशन करो. अगर ये नहीं बोला होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बिफोर एडमिशन आफ्टर एडमिशन का कॉलम नहीं बनाते. बट बिकॉज दीज पीपल हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर कॉलम्स even in the trading account, we will have to prepare columns in the trading account also, because these people have asked us to prepare columns before admission 6 month and after admission 6 month. So trading account में भी कॉलम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम बनाते ही है when admission takes place in the middle of the year. And they have told to prepare profit and loss appropriation account containing column same 1st April से 30 September and 1st October से 31st March. And we have to prepare balance sheet. So now we can start with the posting. तो सबसे पहले हमें ड्रॉइंग एंड कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर का. तो वी हैव प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे डेबिट साइड में वी विल राइट to drawing because drawing has debit balance
एंड क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ ए का कैपिटल एंड ड्रॉइंग कितना है, लेट अस सी. 15,000 एंड 3 lakhs. 15,000 एंड 3 lakhs. तो ए में लिखो, ए में वी विल राइट ड्रॉइंग इज 15,000 एंड कैपिटल इज 3 lakhs. आफ्टर विथ बी का देखो, बी का ड्रॉइंग इज 10,000 एंड कैपिटल इज 2 lakhs. Okay, so we will do the we will write it. Capital is, drawing is 10,000 and capital is 2 lakhs. इसके बाद C का ड्राइंग इज 5,000 एंड कैपिटल इज 1,50,000. सो ये भी लिख लेते हैं, 5,000 एंड 1,50,000. ये भी हो गया, पहला वाला पोस्टिंग हमने कर लिया. नाउ ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कब का ओपनिंग स्टॉक है, लेट अस सी. ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1/4/2012. सो ओपनिंग स्टॉक लिखना है तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट अप्रैल का दिया है 30,000. अप्रैल टू सितंबर, फर्स्ट अप्रैल का दिया है 30,000. ना परचेस एंड सेल्स है, पर परचेस एंड सेल्स का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि अप्रैल से सितंबर का परचेस कितना है, टोटल परचेस कितना है. तो यहाँ पे आई विल राइट टू परचेसेस, यहाँ पे आई विल राइट बाय सेल्स. नाउ हमें फर्स्ट अप्रैल से 30 सितंबर का परचेज दिया है 4 लाख एंड फर्स्ट अप्रैल से 30 सितंबर का सेल्स दिया है 6 लाख. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परचेस अप्रैल से सितंबर है 4 लाख एंड सेल्स अप्रैल से सितंबर है 6 लाख. अब अक्टूबर से मार्च का कैसे निकालेंगे, टोटल परचेसेस 9 लाख जिसमें सितंबर तक इट इज 4 लाख. तो 9 लाख माइनस 4 लाख करो, बाकी महीने का हमें परचेस मिल जाएगा. 9 लाख माइनस 4 लाख इज 5 लाख. 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख. तो टोटल परचेस हमें मिल गया. अभी सेल्स टोटल कितना है 14 लाख और सितंबर तक का सेल है 6 लाख. तो 14 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो बाकी का सेल अक्टूबर से मार्च रहेगा, करेक्ट. 14 lakh minus 6 lakh is how much? 8 lakh. So 8 lakh plus 6 lakh, 14 lakhs. We have got the total sales. Now what is given? Wages. Wages total है 1,40,000. लेकिन here also they have given 60,000 till September का wages. तो यहाँ पे लिखेंगे टू wages. Here it is 60,000 given and total is 1,40,000. 60,000 wages दिया है till April to September. तो total is 1,40,000. So 1,40,000 में 60 minus किया तो it will be 80,000. So we'll write 80,000. इसके बाद व्हाट इज देयर आफ्टर वेजेस, फर्नीचर. इसमें देयर इज अ एडजस्टमेंट ऑल्सो ऑफ डेप्रीसिएशन. सो एंड परचेस जो बाद में किया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई विल हैव टू राइट इन असेट ना. सो फर्नीचर, फर्नीचर there is a adjustment 2 lakh. After furniture, we have general expense and selling expense 60,000 and 14,000. 60,000 and 60,000 and how much? 60,000 and
60,000. पहले लेट अस सी द जनरल एक्सपेंस 60,000. तो जनरल एक्सपेंस किधर आएगा? पीएनएल अकाउंट में. तो पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस. टाइम, जनरल एक्सपेंस नॉर्मली इज रिलेटेड टू टाइम. तो यहाँ पे हम लोग दो चीज करेंगे. वन इज नोन एज टाइम रेशो. कभी बिफोर एडमिशन कितना महीना था, बिफोर एडमिशन मंथ्स एंड आफ्टर एडमिशन मंथ. बिफोर एडमिशन बिफोर इधर चाहिए मुझे. One minute, let me take it up first. बिफोर इसको फुल लिखती हूँ. बिफोर एडमिशन मंथ्स one minute. बिफोर एडमिशन मंथ्स और ये रेशो रहेगा आफ्टर एडमिशन. मुझे पहले काउंट करके बताओ. एडमिशन 1 अक्टूबर में हुआ तो, और ये साल शुरू हुआ अप्रैल में. तो कितने मंथ्स है बिफोर एडमिशन? बिफोर एडमिशन इट इज अप्रैल टू September. April to September means how much? 6 months. करेक्ट. अभी हमने काउंट किया था. अप्रैल टू सितंबर इट इज 6 month. एंड यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च अगेन इट इज 6 months. सो हमारा रेशो क्या होगा? 1:1. मतलब 6 भी 1s और ये भी 6 1s. तो 1:1 हमारा रेशो रहेगा. हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में फर्स्ट ईयर में निकालते थे रेशो. सेम वे मुझे एक और रेशो चाहिए जो सब सेल्स से रिलेटेड है. वो मैं सेल्स रेशो में डिवाइड करूंगी. सेल्स रेशो तो मुझे बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन का सेल्स चाहिए. बिफोर एडमिशन इट इज 6 lakh and after admission it is how much? 8 lakhs na. After admission it is 8 lakhs. 1 minute. 14 lakhs is the total sale. तो यहाँ पे लिखेंगे एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? 6 lakh and 8 lakh. ये कैसे मिला 8 lakh? क्वेश्चन में दिया है 14 lakh माइनस 6 lakh. तो क्या सेल रहेगा, क्या रेशो रहेगा? 6:8. इसको और छोटा कर सकते,
करना है तो करो। कैसे? 2 3s एंड 2 4s। तो सेल्स रेशो है 3:4। अगर छोटा नहीं करना है तो 6:8 भी लिख सकते हैं। तो अभी जो भी एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो में डिवाइड करेगी, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमारा टाइम रेशो, कौन सा रेशो में डिवाइड करना है? टाइम रेशो में। क्या है अब? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ जनरल एक्सपेंस? जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? 60,000। तो टाइम रेशियो है 1:1। तो हाँ, 1/2, 30,000 इंटू 1/2 करो, कितना? सॉरी, 60,000 इंटू 1/2 करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 30,000। बिकॉज ये जो जनरल एक्सपेंस है ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस है, ये हर महीने के हिसाब से फिक्स्ड रहेगा। जैसे रेंट होता है, डेप्रीसिएशन होता है, ये सब एक्सपेंस टाइम के हिसाब से हम लोग को होता है। मतलब महीने में सैलरी होता है, महीने के हिसाब से हम लोग देते हैं। तो ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। ये सब क्या है? These all are fixed expenses। तो सारे एक्सपेंसेस को हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। कौन से रेशो में? टाइम रेशो, मतलब मंथ के हिसाब से। बिफोर एडमिशन कितने महीने थे, आफ्टर एडमिशन कितना महीना है, मतलब 6 महीने के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। दैट जनरल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 60,000, 6 मंथ का 30,000, और बाकी 6 मंथ का 30,000। तो उसी 6 मंथ को हमने ये रेशो में डिवाइड किया। 6 6 1 6 1 इज 6 1 6 6 1 6। तो रेशो क्या हो गया? 1:1। तो ये रेशो में हमने क्या किया? जनरल एक्सपेंस को डिवाइड किया। 60,000, 1 + 1 is 2, तो 60,000 इंटू 1/2 एंड 60,000 इंटू 1/2। 1 + 1 is 2, तो हाफ हो जाते हैं। 60,000 इंटू 1/2 इज 30,000। 60,000 इंटू 1/2 इज, तो दोनों का हमें कितना मिला? 30,000 मिला। अप्रैल से सितंबर का भी 30,000 और अक्टूबर से मार्च का भी 30,000। इसके बाद व्हाट इज द अदर एक्सपेंस? इसके बाद व्हाट इज द अदर एक्सपेंस? इट इज सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000। तो इसको भी डिवाइड करना है। ये हम लोग क्यों कर पा रहे? नहीं तो हम सबको महीने के हिसाब से ही डिवाइड करते। हम सारे एक्सपेंसेस को महीने के हिसाब से डिवाइड करते, पर यहाँ पे बिकॉज हमें सेल्स का बिफोर एडमिशन कितना सेल्स है मालूम है, परचेज बिफोर एडमिशन कितना परचेज है मालूम है, तो इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका भी रेशो निकाले। बताओ, सेलिंग एक्सपेंस किससे रिलेटेड रहेगा? सेल्स से। तो सेल्स का जो रेशो है उससे इसको डिवाइड करेंगे। सेल्स का जो रेशो है, सेल्स का रेशो क्या है? व्हाट इज द रेशो ऑफ सेल्स? 3:4, मतलब 3/4। 3 + 4 is 7, तो 3/7, 4/7। तो 14,000 को डिवाइड करो, सेलिंग एक्सपेंस को डिवाइड करो, सेलिंग एक्सपेंस को डिवाइड करो। सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000। सो हम लोग क्या करेंगे? हियर कैल्सी लो तुम्हारा, टेक योर कैल्सी। हियर आई एम नॉट एबल टू राइट। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000। सेलिंग एक्सपेंसेस हाउ मच? 14,000 इंटू 3/7। क्या आंसर आता है देखो। और उसके बाद दूसरे के लिए क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। 14,000 इंटू 4/7। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 6,000 एंड 8,000। यही आंसर आ रहा है, 6,000 एंड 8,000। सो यही हम लोग लिखेंगे इधर।
कितना आया 6,000, तो इधर लिखेंगे 6,000 एंड इधर लिखेंगे 8,000, 6,000 8,000। सो सेलिंग एक्सपेंस को भी हमने डिवाइड कर दिया। ये इसको क्यों नहीं जनरल एक्सपेंस हम मानते हैं, ये जितने भी सारे फिक्स एक्सपेंस होते हैं ना, जैसे डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, जो कि प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब एक्सपेंसेस जो कि टाइम के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, मतलब महीने के हिसाब से इतना प्रिंटिंग का खर्चा होगा, इतना स्टेशनरी का खर्चा होगा, ये सब एक्सपेंस को हम टाइम के हिसाब से 6 महीना एडमिशन के पहले, 6 महीना एडमिशन के बाद वैसे डिवाइड करते हैं। और जो सेलिंग से रिलेटेड है उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं। जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस कुछ होगा तो उसको परचेज रेशो में डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर पा रहे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है कि परचेज बिफोर एडमिशन कितना था, आफ्टर एडमिशन कितना है, सेल्स बिफोर एडमिशन कितना था, आफ्टर एडमिशन कितना है। अगर ये डिविजन हमारे पास नहीं होता तो हम सेलिंग एक्सपेंस को भी टाइम के हिसाब से डिवाइड करते, 6 महीना 6 महीना। बट क्योंकि हमें अभी सेल्स रेशो पता है, सेल्स हमें दो बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन पता है, इसलिए वी कुड डिवाइड इन द सेल्स रेशो। नाउ नेक्स्ट क्या है, डेटर एंड क्रेडिटर। आफ्टर दिस वी हैव डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर कितना है 6 लाख, किसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, 6,26,000 एंड 2,50,000। तो गो टू द बैलेंस शीट। सिर्फ फर्नीचर देयर इज एडजस्टमेंट। सो आफ्टर फर्नीचर हमारे पास क्या है अभी, आफ्टर फर्नीचर वी हैव डेटर एंड क्रेडिटर। सो विद वन लाइन छोड़ के debtors how much is the amount we just saw, the amount of debtor is 6,26,000, 6,26,000 एंड क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, ये तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स इज 2,50,000, इधर लिखेंगे 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 is the creditor. नाउ इसके बाद क्या है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में क्या है, आफ्टर कैश एंड बैंक बैलेंस 3,50,000। सो कैश एंड बैंक बैलेंस लिखते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस इज 3,50,000। तो इसके बाद लास्ट वन व्हाट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज अमाउंट ब्रॉट बाय सी फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए कितना पैसा लाया सी, हमें वो अभी हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। सो व्हाट वी विल डू, so here ओके इसके बाद गुडविल, गुडविल का हमेशा ये क्वेश्चन में है ना क्या स्पेशल है, ये क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया है एंड न्यू रेशो भी दिया है। तो गुडविल में जब भी ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो दोनों दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, व्हेन ओल्ड रेशो, देखो इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ ओल्ड रेशो दिया था, न्यू रेशो तो हमने फाइंड आउट किया था। बट इन दिस रेशो, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द स्पेशल थिंग, दैट ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हेन ओल्ड रेशो and new ratio, old ratio and new ratio both are given and new ratio
बोथ आर गिवन, तो हम क्या करते हैं, एनीवन नो, जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया रहता है तो हम कौन सा रेशो निकालते हैं? when in admission, when old ratio and new ratio both are given, that time में हम लोग गुडविल को कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? नो, न्यू रेशो तो न्यू रेशो नहीं. There is one special thing, when old ratio and new ratio both are given in the question, both are given in the question, anyone can say कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं? बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम कुछ एक दूसरा रेशो कैलकुलेट करते हैं. आई वॉन्ट टू सी 12th स्टैंडर्ड किसको याद है. एडमिशन के टाइम पे व्हेन न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो बोथ आर गिवन, एनपीएसआर तो क्या है? एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो तो ऑलरेडी दिया है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो न्यू रेशो है, वो तो दिया है, वो तो दिया है ऑलरेडी. तो when old ratio and new ratio both are given in the question, तो हम लोग नो, नॉट गेन रेशो. गेन रेशो तो रिटायरमेंट एंड डेथ में निकालते. एडमिशन में दूसरा है कुछ जो हम लोग निकालते हैं. व्हाट इज इट कॉल? वी कैलकुलेट, वी कैलकुलेट, व्हाट इज इट कॉल? नो, पार्टनर्स कैपिटल रेशो नहीं, कुछ और है. क्या कैलकुलेट करते हैं? व्हाट डू वी कैलकुलेट? अभी तक ना मेरा, आई एम नॉट एबल टू टाइप हियर एंड you all have not given the answer. Yes, correct answer. Rabia has given the correct answer. Sacrifice ratio. जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है तब हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते. वी कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो. सो व्हाट डू वी कैलकुलेट? जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया रहता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशो. वी कैलकुलेट. कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशो? What is the formula of sacrifice ratio? Sacrifice ratio का फॉर्मूला याद है किसी को? We calculate sacrifice ratio. Sacrifice ratio. तो sacrifice ratio का फॉर्मूला है, anyone remember sacrifice ratio's formula? Old ratio minus new ratio. What is the formula of sacrifice ratio? Old ratio minus new ratio. Old जो PSR है, old PSR profit sharing ratio minus new PSR. This is the formula of what? Sacrifice ratio. Sacrifice ratio का formula है old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. This is the formula of sacrifice ratio. Sacrifice ratio का ये फॉर्मूला है. तो कौन सैक्रिफाइस दे रहे? नए पार्टनर के आने के वजह से जूने पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट, जहां पे पहले प्रॉफिट का, देखो वाई सैक्रिफाइस रेशियो वी फाइंड आउट इन एडमिशन. एडमिशन में क्या होता है कि पहले सिर्फ 2 पार्टनर्स थे तो सारा प्रॉफिट दोनों में डिवाइड होता था. अभी क्योंकि थर्ड पार्टनर आ गया तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि थर्ड पार्टनर को इस प्रॉफिट में हिस्सा मिल सके. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन यू एंड योर सिस्टर आर हैविंग अ पिज्जा, तो पिज्जा में 6 पीस है, अब दोनों ही बैठे हो खाने के लिए, तो वो पिज्जा में वो 3 पीस खाएगी और तुम 3 पीस खाओगे 6 पीस में. अभी सपोज तुम्हारा ब्रदर आ गया
तो नाउ तुमको उसके साथ वो पिज्जा भी तुम दोनों को वो पिज्जा उसके साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यू हैव 3 पीस, तो तुमने एक पीस सैक्रिफाइस करके उसको दे दिया भाई को, और तुम्हारी सिस्टर ने भी एक पीस सैक्रिफाइस करके भाई को दे दिया। तो जब भी व्हेन देयर इज अ एडमिशन, देयर इज सैक्रिफाइस ऑफ द प्रॉफिट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वेन एवर देर इज अ एडमिशन, old partners have to make a sacrifice in the profit। जहां पे 3-3 शेयर ऑफ पिज्जा मिल रहा था एक एक को, अभी नया भाई आ गया तो उसको 3 में से एक सिस्टर ने एक पिज्जा दिया तो उसके पास 2 बच गया, एंड दूसरी सिस्टर ने भी 3 में से एक पीस अपने भाई को दिया तो उसका भी 2 बच गया। तो दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो इन एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ द प्रॉफिट because a new partner is coming। तो in admission we prepare sacrifice ratio। but in retirement क्या होता है, जो old partners है, अभी एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिलेगा। therefore in retirement and in death गेन रेशो होता है, बिकॉज एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं इन रिटायरमेंट, और इन डेथ एक पार्टनर दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन में वो जो पार्टनर बाहर जा रहे हैं उसका प्रॉफिट अभी बाकी बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। इफ योर ब्रदर सेज, 3 लोग बैठ के तुम लोग पिज्जा खा रहे हो, और जो ब्रदर है तुम्हारा वो बोलते हैं मुझे पिज्जा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, तो वो बचा हुआ उसका पीस तो तुम लोग दोनों यूज करोगे। यस, न्यू प्रॉफिट गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट इज द फॉर्मूला फॉर गेन रेशो, सैक्रिफाइस का उल्टा गेन रेशो। तो दैट इज द फॉर्मूला। सो वो हम लोग गेन रेशो कब देखेंगे, व्हेन वी विल बी डूइंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का जब सम करेंगे तो गेन रेशो देखेंगे, अभी के लिए सैक्रिफाइस रेशो। सो देखो ऐसा फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। क्या हम लोग एडमिशन में कौन सा रेशो फाइंड आउट करते हैं, इस तो तुम लोग को ऐसे ही तुम लोग जैसे सेल्स रेशो दे रहे हो, सैक्रिफाइस रेशो, गेन रेशो, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सैक्रिफाइस रेशो विल बी द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कैन कम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, यू आल्सो थिंक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम। सो अभी हम लोग ए एंड बी का सैक्रिफाइस रेशो निकालते, ठीक है, ए एंड बी का सैक्रिफाइस रेशो निकालते। तो ओल्ड में से न्यू करना है ना, सो लेट अस फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशो। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग क्या सैक्रिफाइस कर, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं जरा वो देखते हैं हम लोग। तो ओल्ड रेशो क्या है, ए का ओल्ड रेशो क्या है, क्वेश्चन में दिया है 3:2। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, और न्यू रेशो क्या है 3/5, 2/5। 3 + 2 = 5, तो 3/5, 2/5। और न्यू रेशो क्या है 2 + 2 + 1, तो 2/5, 2/5, 1/5। 2 + 2 + 1 is 5 ना, 2 + 2 + 1 is 5। तो 2/5 ए का है, 2/5 बी का है, सी का है 1/5, और ए का है 3/5 ओल्ड रेशो, एंड 2/5 इज द बी का ओल्ड रेशो। So let us now just substitute it in the formula। तो ए का ओल्ड रेशो है 3/5, और इसमें से माइनस करना है न्यू रेशो। न्यू रेशो है उसका 2/5, 2:2:1 है ना, 2/5, 2/5। तो ये से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर माइनस करने पे हो जाएगा 1/5। एक मिनट,
3 में से 1, सॉरी इसका कितना है, इट इज 3/5 एंड 1/5 है क्या न्यू रेशो? नहीं ना, इट इज 2/5, इज 2/5। तो क्या बचेगा, माइनस करने पे क्या बचेगा, 3 में से 2 हिस्सा चला गया तो क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। सेम वे बी का भी करो, बी का क्या है, ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो भी है 2/5। तो क्या आंसर बचेगा, what will be the answer, 2/5 minus 2/5 will be 0 ना, आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा नील, 0। मतलब पूरा का पूरा बी ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो पूरा का पूरा गुडविल जो है वो सिर्फ ए को मिलेगा। अगर अभी हमें यहाँ पे कुछ आंसर मिलता तो वो रेशो में हम सैक्रिफाइस रेशो, मतलब वो रेशो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते, पर हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी वर फाइंडिंग आउट द सैक्रिफाइस रेशो, मींस यहाँ पे बी ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया, तो पूरा का पूरा गुडविल ए को मिलेगा। पूरा का पूरा गुडविल 50,000 वो किसको मिलेगा, पूरा का पूरा गुडविल विल बी डिवाइडेड टू, पूरा का पूरा गुडविल विल बी डिवाइडेड टू ए, बिकॉज बी का सैक्रिफाइस रेशो इज नील, उसने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा गुडविल विल बी डिवाइडेड टू ए। तो क्या करेंगे, क्या रेशो रहे, क्या हमारा एंट्री क्या रहेगा, एंट्री रहेगा, what will be the entry here, the entry will be goodwill, entry will be goodwill to A, goodwill अकाउंट कितना 1000 है, 50,000 है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, सारा का सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। सो गुडविल अकाउंट 50,000, गुडविल अकाउंट 50,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, my cursor is not working again, 50,000 टू किसको मिलेगा सारा, एस कैपिटल, सिर्फ ए लिख दू, एस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, सब में सिर्फ ए लिख रही हूं, तो वो भी रहेगा 50,000। तो ये 50,000 ए को मिल रहा है, पूरा का पूरा गुडविल ए को मिल रहा है, तो हम लोग एस कैपिटल अकाउंट तो बना रहे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में वी विल राइट, क्योंकि ए क्रेडिट में है ना, लिखेंगे बाय गुडविल, हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल, गुडविल इधर ए में वी विल राइट 50,000, बिकॉज बी ने कुछ नहीं तो ए और बी दोनों को मिलता, बट बिकॉज बी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, पहले जितना उसका रेशो था अभी आफ्टर एडमिशन भी उसका सेम रेशो, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक सिस्टर ने एक पीस दिया अपने पिज्जा का, दूसरी बहन ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो पूरा का पूरा गुडविल जो मिल रहा है वो सिर्फ ए को मिल रहा है, बी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये भी हो गया, गुडविल का भी हमने कर लिया। अभी सम लेट अस कम टू द एडजस्टमेंट, ओनली वन टू एडजस्टमेंट्स आर देयर, बिकॉज ये सब तो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन 39 2012, ये 39 का स्टॉक दिया है, 39 का स्टॉक मतलब
यहाँ पे आएगा ये 39 का स्टॉक दे से वॉज हाउ मच 80,000। मैंने ये वाला पॉइंट पहले रीड किया। हाँ, स्टॉक ऑन 39 वॉज 39 का स्टॉक। 39 का स्टॉक मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना 39 का क्लोजिंग स्टॉक। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 39, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं ना 39 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो इधर लिखेंगे कितना है 80,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन का क्या हो जाता है 30 सितंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 अक्टूबर का वो क्या हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट। 30 सितंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले दिन 1 अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सेम वे हमें 31 मार्च का भी क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,80,000। 31 मार्च का भी क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इट इज हाउ मच, इट इज 1,80,000। सो 1,80,000 यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000, 1,80,000। सो इसका दूसरा जगह भी इफेक्ट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक असेट में भी आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट हम लोग 31 मार्च को ही प्रिपेयर करते। 30 सितंबर को हम नहीं 30 सितंबर को हम नहीं सिर्फ प्रिपेयर करते कि उसका अगला दिन जो बाइफोकेशन हुआ था वो हमने लिख दिया। 1,80,000 ये भी हो गया, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। नाउ द एडजस्टमेंट, ये परचेस कर दिया, सेल्स कर दिया, वेजेस कर हमने एडजस्टमेंट इफेक्ट दे दिया, ये सब इंफॉर्मेशन था। अब फर्नीचर वर्थ ₹1,00,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2013। तो 2 लाख का जो फर्नीचर है उस पर डिप्रिसिएशन 20% पूरे साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे लेस सो यहाँ पे वी विल राइट लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे बताओ मुझे, नहीं 20% निकालना है। तो 1 लाख पे, ये 2 लाख पे 1 लाख का मशीनरी, सिर्फ 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 3 महीना यूज हुआ है और बाकी 1 लाख पूरा साल यूज हुआ है। तो 20% 1 लाख पे कितना डेप्रीसिएशन होता है, यहाँ पे लिखने में ना मेरा बहुत टाइम जाएगा। टू शो इट हियर लॉट ऑफ टाइम विल गो, इसलिए आई एम नॉट शोइंग हियर। देखो फर्नीचर है, फर्नीचर 2 लाख है बराबर। वो 2 लाख में 1 लाख जो है वो कभी परचेस हुआ जान में, कभी परचेस हुआ जान में। 20% डेप्रीसिएशन निकालना है। कितना परसेंट डेप्रीसिएशन, 20%, मतलब 20 डिवाइड बाई 100। सी 20 डिवाइड बाई 100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। एक निकालना है 3 महीने के लिए और दूसरा 1 लाख का मशीन तो हमारे पास स्टार्टिंग से था तो उस पे पूरा साल का निकालना है। सो हियर गॉट स्टक हियर।
It has got stuck. I'm not able to move it. Shit. तो तुम लोग इसका आंसर निकाल लोगे. देखो 22 लाख पे 1 लाख का मशीन जैन में परचेस हुआ है. कभी परचेस हुआ है? जैन में 20% का डेप्रीसिएशन निकालना है. जैन फेब मार्च 3 महीना. एक पे हमें कितना महीने का निकालना है? 3 मंथ्स का निकालना है. 3/12 3 महीने का. कौन सा? जैन से लेके मार्च 3 महीने के लिए निकालना है. और दूसरे पे तो पूरा ईयर का निकालना है. टोटल 2 लाख है तो 1 लाख इंटू 20%. 1 लाख इंटू 20%. तो कितना डेप्रीसिएशन आया? 20. Shit, this is not moving ahead. इसलिए I was not going to show the working. I directly write ये फुल ईयर के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे अटक गया है. इंटू 12/12. तो ये 1 ईयर का. 1 ईयर का 20% कितना? 20,000 एंड 5,000. तो कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस 5,000. सो डेप्रीसिएशन हो जाएगा 25,000. 2 मिनट का काम, इतना टाइम ले लिया. 25,000 तो ये हो जाएगा कितना? 1,75,000. So this will be 1,75,000. Now इसके बाद last adjustment is there, that is interest on capital. Interest on capital है हमारे पास 12%. So capital कितना है? कैपिटल इधर दिया हुआ है 3 लाख पे. तो तीनों पे कैपिटल निकालना है. तो इसका दूसरा इफेक्ट भी देना है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B एंड C. 12% निकालो 6 महीने के लिए. 3 लाख पे 12%. हाँ, फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया ना. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. टू depreciation to depreciation टाइम रेशो ही हो जाएगा बिकॉज 6 महीने के लिए ये हो रहा है. तो आधा आधा करो उसको. 25,000 को हाफ ऑफ करो. कितना आता है 6 महीने के हिसाब से? हाउ मच यू विल गेट 25,000 का? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो 20,000 का आधा आधा करेंगे तो ये होएगा 10,000. और जो 5,000 जैन का डेप्रीसिएशन है वो तो आफ्टर जैन मतलब आफ्टर एडमिशन 3 महीना. तो ये जो है यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं. यहाँ पे जैन टू मार्च का जो है 5,000 वो पूरा का पूरा आफ्टर एडमिशन में चला जाएगा. बिकॉज ये वाला जैन में जो खरीदा हुआ मशीन है, सॉरी खरीदा हुआ फर्नीचर है, वो तो आफ्टर एडमिशन आया है. तो इसका पूरा डेप्रीसिएशन पोस्ट पीरियड में आएगा. ये जो 5,000 है, ये 5,000, इसका डेप्रीसिएशन 5,000 will come in which period? After admission. This will come in after admission. This will come in after
एडमिशन, जो एडमिशन के बाद वाला है उसमें आएगा ये आफ्टर एडमिशन में 5,000, और 20,000 जो 1 लाख का डेप्रीसिएशन है, 1 लाख का जो डेप्रीसिएशन है, दैट विल कम अंडर, उसका जो 20,000 का डेप्रीसिएशन है वो आधा आधा करके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 10,000 एंड हियर इट विल कम 15,000। कैसे मैं बताती हूँ, 20,000, 20,000 फुल ईयर का डेप्रीसिएशन है, तो वो डिवाइड बाय 6 मंथ में डिवाइड होगा, 20,000 6 हाफ करेंगे तो 10,000, 20,000 ये इंटू 6 डिवाइड बाई 12 तो 10,000 आएगा। और जो 5,000 है ये तो जैन में खरीदा है, तो जैन टू मार्च ये तो आफ्टर एडमिशन पीरियड में आएगा, तो 10,000 इधर 10,000 इधर, और जो 5,000 जैन में खरीदा हुआ फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है वो तो अक्टूबर टू मार्च में आएगा, तो इधर 10,000 हो जाएगा और इधर 15,000 हो जाएगा, बिकॉज ये 5,000 जैन में जो कि अक्टूबर टू मार्च में आते हैं वहां का डेप्रीसिएशन है, तो यहाँ पे 10,000 अप्रैल से सितंबर तक का, और यहाँ पे 15,000 इंक्लूडिंग द 5,000 डेप्रीसिएशन ऑफ द फर्नीचर विच वाज परचेज्ड ऑन जैन, तो मिला के यहाँ पे हो जाएगा 15,000। तो ऐसे करके वी विल राइट 10,000 एंड इन द पोस्ट इन द अक्टूबर टू मार्च वी विल राइट 15,000। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मैंने इसको रब कर दिया। अब मुझे है ना तुम लोग इंटरेस्ट बताओ, टेल मी द इंटरेस्ट, तुम लोग कैलकुलेट करो तुम्हारे कैलसी में 3 लाख पे 12% 6 महीने के लिए कितना होता है, 6 मंथ के लिए, अप्रैल टू सितंबर इज 6 मंथ, कितना होता है, आर यू गेटिंग 18,000, 3 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ, और अगेन 3 लाख पे 12% फॉर अनदर 6 मंथ, तो ये 18,000 हो गया। सेम वे बी का 2 लाख पे 2 लाख कैपिटल है, उस पे 12% 6 महीने के लिए कितना होता है, इज इट कमिंग टू 12,000, is it coming to 12,000, and दूसरा 6 महीने में भी it will be 12,000, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 12,000। इसके बाद सी तो यहाँ पे था ही नहीं, इधर तो उसका एडमिशन ही नहीं हुआ था, तो 1,50,000 पे 12% अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का कितना होता है, इज इट कमिंग 9,000, तो हमें मिल गया, वी गॉट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका दूसरा इफेक्ट भूलने अभी दे देंगे, नहीं तो बाद में वी विल फॉरगेट, तो यहाँ पे बताएंगे बाय इधर बताएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को ऐड करके बताओ, 36,000 दोनों ऐड किया मैंने, और इसके बाद ये दोनों को भी 12,000 भी दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा, 24,000, और 9,000 तो इट इज ओनली 1, तो ये 9,000 को कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली 6 महीने के लिए वी विल राइट हियर 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अभी क्या करो,
profit and loss appropriation account is used to distribute the profits ऑफ द बिजनेस. फिर वो सैलरी टू पार्टनर रहने दो, फिर वो कमीशन टू पार्टनर रहने दो, इंटरेस्ट टू पार्टनर रहने दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहने दो, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन दिस. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी पार्टनर्स को बिजनेस से रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट भी हमें यहाँ अप्रोप्रिएशन में डिवाइड करना है, बिकॉज प्रॉफिट भी बिजनेस में से रिटर्न मिल रहा है ना. नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये है 6,80,000, ये है 9,80,000, तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 6,80,000, 9,80,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, तो जीपी कितना आया, माइनस करके बताओ जीपी कितना है, 1,90,000, एंड इधर आ रहा है 3,20,000, 3,20,000. सो इसको बोलेंगे बाय जीपी, बाय जीपी कितना आ रहा है, 1,90,000 एंड 3,20,000. तो सेम चीज इधर भी लिखना है. नेट प्रॉफिट कितना आया, तो माइनस करके जो आएगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है माइनस करके, 1,44,000, एंड इधर आ रहा है 2,67,000. तो ये प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 1,44,000 एंड इधर 2,67,000. तो यहाँ पे 267 और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है इसको टू नेट प्रॉफिट ए, बी एंड सी तीनों को जाएगा, लेकिन यहाँ अप्रैल टू सितंबर में तो देयर वेर नो, सी वॉज नॉट देयर, तो ओल्ड रेशो में डिवाइड करो 3:2 में. कितना प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद 1,44,000 में से माइनस दिस वन 18 and 20,000 माइनस करो, कितना आता है 1,44,000 minus 18 minus 12, you will get
114, 14,000। तो इसको डिवाइड करो ए और बी में, कौन से रेशो में? 3:5 रेशो में। आपको मिलेगा 68,400, 3:2 रेशो में 45,600। सेम वे यहाँ पे पोस्ट पीरियड में भी माइनस करो, 267 में माइनस करो 18, माइनस करो 12,000 और माइनस करो 9,000, तुमको मिलेगा 2,28,000। इसको 2:2:1 जो न्यू रेशो है, अभी तो सी इज ऑल्सो बिकम द पार्टनर और न्यू रेशो है, उसमें डिवाइड करो तो आएगा 91,200, 91,200 एंड 45,600। न्यू रेशो क्या है? यहाँ पे तो लिख दो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। और न्यू रेशो क्या है? व्हाट इज द न्यू रेशो? न्यू रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू रेशो इज 2:2:1। न्यू रेशो इज 2:2:1। 2:2:1। तो ये ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ए और बी प्री बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन न्यू रेशो में तीनों को दिया। तो अभी हम लोग को ये प्रॉफिट का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। इधर लिखना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट जब करेंगे तो नेट प्रॉफिट को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 68,400 और 91,200 कितना होता है? 1,59,600। बी का कितना होता है? बी का 1,36,800 और लास्ट सी का विल बी 45,600। 45,600 क्या किया? दोनों प्रॉफिट को ऐड करके लिखा है, तो हमें तीनों का मिल गया। अब क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे, 545, 600 एंड सेम वे बी का 360, 800 और लास्ट वाले का 2,04,000, 2,04,600। तो यहाँ पे भी सेम लिखना है, 545, 45,600 45,600, 360, 800 और लास्ट में 2,04,600। तो माइनस करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे बाय टू बैलेंस, उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है? 15,000 माइनस करो, 5,30,000, 5,30,600 एंड सेकेंड वाले का है 3,50,800 और लास्ट वाले का है 1,99,600। तो ये जो मिल गया ये हमारा फाइनल कैपिटल है। तो यहाँ पे हमें वही लिखना है, और इसको टैली करना है। कैपिटल A, B, C and the amount is how much?
5,30,600, 3,50,800 और लास्ट वाले का 1,99,600। ये सबको ऐड करो, देखो कितना कैपिटल आ रहा है, हाउ मच कैपिटल यू आर गेटिंग। 10,81, 10,81, 10,81,000। तो अभी देखो टोटल क्या आ रहा है, व्हाट टोटल यू आर गेटिंग ऑफ द बैलेंस शीट, क्या टोटल यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 13,31,000, 13,31,000। so यही सेम टोटल you should get here also, 13,31,000. With this sums get over.